Welcome to this day on the worship service. God bless you as we join worshiping on the 12th Sunday after Pentecost. It's such a wonderful time that as we worship the Lord with the purpose, and today the Lord is want to speak through His word to us. And the theme for today, our worship, is the fruitfulness of the gospel depends on how it is received. Truly, God wants to know our intention of receiving the Word of God in our hearts. And the Bible says, Psalm 50, verse 1, it says, Lord, even the most holy God hath spoken and called the world from the rising up of the sun unto the going down thereof. Of course, the Lord is with us, and we also have a very special moment over here today. We welcome Reverend Dennis Lal, who has been attached to us as Associate Presbyter. We also give thanks to the Lord for Reverend Arvind Peter, who has not been transferred from here, and Reverend Dennis Lal has not joined in. And we also thank God that not only he joined as Associate Presbyter, he's also a General Secretary of the Church of North India. So we thank the Lord, and we hope and pray that we will be blessed for his message today, and in English and in Hindi. And of course, coming time that we would hear from him and we fellowship with him with the church. Pastorally, we would be blessed of his presence over here. So let us adore and worship God with this theme, the fruitfulness of the gospel in our lives and how we make it fruitful in our lives. Let us pray. Help us, O Lord, to receive with faith your life-giving word, so that it may take roots in our hearts and bear fruit in our lives. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. The responsive reading has been taken from Psalms chapter 85, verses 7 to 12. Please respond by saying, I will hearken to what the Lord God will say. Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation. Let me hear what God the Lord will speak. For he will speak peace to his people, to his saints, but let them not turn back to folly. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. Steadfast love and faithfulness meet.
righteousness and peace kiss each other. Faithfulness springs up from the ground, and righteousness looks down from the sky. Yes, the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Old Testament lesson is taken from the book of Jonah, chapter 3. Jonah, chapter 3, beginning to read from verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey. And he called out, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. The word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh, By the decree of the king and his nobles, let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Let them not feed or drink water. But let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that he had said he would do to them, and he did not do it. Here ends the lesson. This is the word of God. Please respond. Thanks be to God. First reading is taken from the book of 1 Thessalonians chapter 1. This I am reading from King James Version Bible. Paul and Silvanus and Timotheus, unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father, knowing, brethren beloved, your election of God. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of man we were among you for your sake. And ye become followers of us and of the Lord, having received the word in much affection, with joy of the Holy Ghost, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For
from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. This is the word of the Lord. Thanks be to God. आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। The Gospel reading has been taken from the Gospel according to Matthew, chapter 13, verses 1 to 9 and 18 to 23. That same day Jesus went out of the house and sat beside the sea, and great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying, A sower went out to sow,
And as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured him. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches it away, what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while. And when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. But for what was sown among the thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. Thus ends the reading of God's word. In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and in the midst of the present challenges due to coronavirus, the fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all who live in Delhi and NCR, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country, especially at our borders with Pakistan, Nepal, and China. Lord, in your mercy. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor and hungry, especially for the migrant laborers and their families, and those who are facing difficulties due to the recent floods. We especially pray for those affected by COVID-19 and those who are caring for them. We pray for the medical professionals, scientists, the establishment, and the volunteers. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all to whom authority is entrusted in this and other countries, especially for our President, the Prime Minister, the Chief Justice of India, the Lieutenant Governor, and the Chief Minister of NCT of Delhi, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world. Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for P.C. Singh, our moderator, A. Dharmaraj Rasalam, moderator of the Church of South India, Joseph, Metropolitan of the Mar Thoma Church, for Varis Masih, our bishop, for Timothy, Dennis, and Jay Kumar, our presbyters,
and for all other ministers of your church, that they may be faithful in your ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer. That with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us say together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions, which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Hallowed be thy name. As in heaven, so on earth, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread. Hallowed be thy name. And forgive us, Father, all our debts. Hallowed be thy name. As we forgive all our debtors. Hallowed be thy name. And lead us not into temptation. Hallowed be thy name. But deliver us from all evil. Hallowed be thy name. For thine is the kingdom, power, and glory. Hallowed be thy name. And forever and ever. Hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so. Hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so. Hallowed be thy name. The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God.
as this is the prayer confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship Him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. Very good morning to all of you. Greetings to all the members of the Free Church, Parliament Street, in the name of Jesus Christ our Lord. First and foremost, I am thankful to God Almighty for this opportunity to minister at Free Church, Parliament Street. I would like to thank our Bishop, the Right Reverend Dr. Waris K. Masih, for posting me here as the Honorary Associate Presbyter. I would like to thank Reverend Timothy Shaw, our Presbyter in charge, Reverend Jayakumar, Associate Presbyter, the members of the Pastorate Committee, and all of you for your warm welcome. I bring greetings on behalf of the Synod of the Church of North India. I also bring greetings on behalf of my family, especially my wife, Reverend Shirley Lal, who has recently served as the Honorary Associate Presbyter at Free Church, Parliament Street. Friends, today is the 12th Sunday after Pentecost, and the theme of our meditation is the fruitfulness of the gospel depends on how it is received. Let us pray. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the gospel text today, Matthew chapter 13, verse 1 to 9, and 18 to 23, we find the parable of the sower. Jesus often spoke in parables. But why did he do so? What was the purpose of speaking in parables? In parables, Jesus would use common life examples
to communicate profound spiritual truths. In Matthew chapter 13, verse 10 to 17, Jesus himself explains to his disciples why he spoke in parables. On one hand, parables give opportunity to the ordinary people to decode the mysteries of God's reign in simple terms. And on the other hand, it denied excuse to those who projected themselves to be spiritually matured but failed to listen, perceive, or understand the message of the gospel. Thus, most of the parables of Jesus are left to the audience for self-perception. However, few parables were also explained by Jesus himself. And parable of the sower is one such parable which was explained by Jesus. The parable of the sower is presented in Matthew chapter 13, verse 3 to 9, and explained by Jesus in Matthew chapter 13, verse 18 to 33. The parable is about a sower who went out to the field to sow the seeds. In the process of sowing, some seeds fell on the path but were soon devoured by the birds. Other seeds either fell on the rocky surfaces or upon the thorns. These seeds did germinate, but could not sustain the growth and withered away. And the rest of the seeds fell on a good soil and brought forth produce to the tune of 30, 60, and even 100-fold. Through this parable, Jesus was communicating that the receptivity of the soil to the seed defines the quality of the soil. Similarly, the level of our receptivity to God's word would be seen in the extent of its fruitfulness and thus reveal our spiritual state and maturity. From this simple yet powerful parable of Jesus Christ, we can draw two significant messages for ourselves. First, we have a God who takes initiative with the divine word to reach out to all of us with opportunities of growth. I repeat, we have a God who takes initiative with the divine word to reach out to all of us with opportunities of growth. You and I know that religion is often perceived as human attempt to search God. However, Bible present a contrasting picture. In the parable, the sower decides to go out to sow. It is the sower's initiative. Bible introduces us to a God who takes initiative to reach out to us. The sower takes the initiative to sow. He reaches out to sow same kind of seed. While there is a distinction in the quality of soil, the quality of seed is constant. Similarly, while our receptivity to the gospel may vary, there is no variation in the content of the power of the gospel which is given to us. The sower here not only takes initiative to sow the same kind of seed, but sow the seed irrespective of the nature of the soil. Some portion of the soil appears to be hardened, as it may have been used as a pathway. Some portion of the soil had stones, some had thorns, but some were fertile. But irrespective to the nature of soil, the sower continued to sow the same seed. We have a God who makes no distinction in his plan of salvation. The very nature of the gospel is all inclusive. Finally,
The sower not only takes initiative to sow same kind of seed, irrespective of the nature of soil, but he extends equal opportunity to each category of soil to respond to the seed. When God's word reaches us, when we hear the gospel of Christ, each of us have equal opportunity to respond to the gospel. We are reminded in John 3:16, God so loved the world. Yes, God loves everybody in the world, that he gave his only begotten Son. Jesus Christ is presented to the whole world, so that whoever believes in him, equal opportunity to all to believe, may not perish, but have eternal life, equal opportunity of growth. So the first significant message for us today from this parable is that we have a God who takes initiative, a God who takes initiative with divine word to reach out to all of us with equal opportunities of growth. The second significant message for us is that the extent of our response of the gospel determines the quality of our spiritual growth. I remember when I was posted at Christ Church Jagadri, a rural pastorate in Haryana, for the 5 initial years of my ministry. Both I and Reverend Shirley decided to experiment our skills with the kitchen garden. We prepared a small garden area and bought a packet of tomato seeds and planted it. We were delighted to see that the seeds germinated into saplings and then grew into plants. We were also blessed with our first yield of tomatoes. However, we only had one regret, that the size, shape, and color of the tomatoes were not perfect as the image that was seen on the seeds packet. Needless to say, we had to be satisfied with what we had, because the quality of the seed supplied to us was not the best, and definitely not what was projected on the seed packet. However, in the parable today, there was no issue with the quality of seed. The sower has used the same quality of seed. So the issue was with the quality of the soil. As I mentioned in the beginning of today's reflection, though this parable, Jesus was communicating that the receptivity of the soil to the seed defines the quality of the soil. Similarly, the level of our receptivity to God's word would be seen in the extent of its fruitfulness, and thus reveal our spiritual state and maturity. Some of us, my friends, we are like soil on the pathway, which has hardened over a period. Since the gospel is not understood, it remains like an exposed seed on the ground, and Satan is quick to remove the seed of the gospel from our life. When there is absolutely no receptivity to the gospel, there will not be any impact on us. Then some of us are like the soil with rocky ground. We may appear enthusiastic towards the gospel, but we don't allow gospel to gain roots. Thus, in the face of trials and tribulations, we are quick to disown our faith in the gospel. Then some of us are like soil with lot of thorns. We do allow the gospel message to be rooted in our life, but we succumb to the worldly concerns and soon derail from our spiritual journey. Finally, some of us are like the good soil. We do not only allow the gospel message to be rooted in our life, but we truly imbibe it. In fact, we allow the gospel
to nurture our life, and thus we bear the fruit of the gospel 30, 60, and 100-fold. So the second significant message for us is this, that the extent of our response to the gospel determines the quality of our spiritual growth. In the Old Testament reading, we find mention of the people of Nineveh. Nineveh is described in the Bible as a great city, spread over a large area, but the people of Nineveh were evil. The word of admonition reaches to the people of Nineveh through a reluctant prophet Jonah. The people of Nineveh responded to God's message. They repented of their evil ways. From being like a hardened soil of the pathway, the people of Nineveh turned to be like a good soil. The quality of their response to God's message was so genuine that God relented, and God decided to spare people of Nineveh. Friends, while some of us may appear, and I use the word appear in quotes, while some of us may appear to be a soil that is ready, and some of us may appear to be a hardened soil, but it is not the quality of our appearance, but the quality of our response which decides our destiny. For example, the rich man who came to Jesus in search of eternal life, Matthew chapter 19, verse 16 to 22, the devotion he exhibited in following the commandments made him appear like a fertile soil. But sooner, he was challenged to sell his possession and to share it with the poor. He withdrew. His response revealed that he was not like the fertile soil, but like the soil which was full of thorns and could not face the trials of life. Secondly, we may look at St. Paul. As Saul, he may have appeared like a hardened soil, but with the Damascus experience, he came out to be like a fertile soil. The fruit of St. Paul's ministry are manifold, including the church at Thessalonica, as mentioned in the epistle reading today. In conclusion, I would like to reiterate there are two significant messages we can derive from the parable of the sower. First, we have a God who takes initiative with the divine word to reach out to all of us and with equal opportunities of growth. And the extent of our response to the gospel determines the quality of our spiritual growth. May God bless us all and enable to be hearers and doers of his word. Amen. Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets.
We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us and remain with us always. Amen. आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का आज 12वां रविवार है। और आज की सुबह हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है, शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। Praise
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वह हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 85, 7 से लेके 12 आयत। आप कृपया उत्तर दें। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई, अब है, अब सदा रहेगी, युग आमीन। आज का पहला पाठ लिया गया है जोना की पुस्तक, उसका 3रा पाठ। इसके बाद यहोवा ने योना से फिर कहा। यहोवा ने कहा, तू नीनवे के बड़े नगर में जा और वहां जाकर जो बातें मैं तुझे बताता हूं उनकी शिक्षा दे। सो यहोवा की आज्ञा मानकर योना नीनवे चला गया। नीनवे एक विशाल नगर था। वह इतना विशाल था कि उस नगर में एक किनारे से दूसरे किनारे तक व्यक्ति को पैदल चलकर जाने में 3 दिन का समय लगता था। सो योना ने नगर की यात्रा आरंभ की और सारे दिन चलने के बाद उसने लोगों को उपदेश देना आरंभ कर दिया। योना ने कहा, 40 दिन बाद नीनवे तबाह हो जाएगा। परमेश्वर की ओर से मिले इस संदेश पर नीनवे के लोगों ने विश्वास किया और उन लोगों ने कुछ समय के लिए खाना छोड़कर अपने पापों पर सोच विचार करने का निर्णय लिया। लोगों ने अपना दुख व्यक्त करने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए। नगर की सभी लोगों ने
चाहे वे बहुत बड़े या बहुत छोटे हों, ऐसा ही किया। नीनवे के राजा ने भी ये बात सुनी और उसने अपने बुरे कामों का शोक मनाया। इसके लिए राजा ने अपने सिंहासन छोड़ दिया। उसने अपने राजसीय वस्त्र हटा दिए और अपना दुख व्यक्त करने के लिए शोक वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद वह राजा धूल में बैठ गया। राजा ने एक विशेष संदेश लिखवाया और उस संदेश की सारे नगर में घोषणा करवा दी। राजा और उसके बड़े शासकों के ओर से संदेश आया था कि कुछ समय के लिए कोई भी पुरुष अथवा कोई भी पशु कुछ भी नहीं खाएगा। किसी रेवड़े या पशु के झुंड को चरवागाहों में नहीं जाने दिया जाएगा। नीनवे के सजीव प्राणी ना तो कुछ खाएंगे ना ही जल पिएंगे, बल्कि हर व्यक्ति और हर पशु टाट धारण करेंगे, जिससे वह ये दिखाई दे कि वह दुखी हैं। लोग ऊंचे स्वर में परमेश्वर को पुकारेंगे। हर व्यक्ति को अपना जीवन बदलना होगा और उसे चाहिए कि वो बुरे कर्म करना छोड़ दे। तब हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा बदल जाए और उसने जो योजना रच रखी है वैसी बातें ना करे। हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा बदल जाए और कुपित ना हो। तब हो सकता है कि हमें दंड ना दिया जाए। लोगों ने जो बातें की थी उन्हें परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने बुरे कर्म करना बंद कर दिया है। सो परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया और जैसे करने की उसने योजना रची थी वैसा नहीं किया। परमेश्वर ने लोगों को दंड नहीं दिया। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष देवे। आमीन। आज का पाठ लिया गया है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला बाब। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अख्या के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अख्या में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये परमेश्वर का वचन है। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर 9 और 18 से लेकर 23 आयत तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे
और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए परिहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुए, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज, और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु। आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे
जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं
और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी जो फ्री चर्च पार्लियामेंट स्ट्रीट के मेंबर्स हैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर पिता का, जिसने अवसर दिया कि आपके बीच में सेवकाई में जुड़ सकूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे बिशप साहब द राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस के मसीह साहब का, कि उन्होंने मेरा तबादला यहाँ पर एसोसिएट प्रेस्बिटर के रूप में किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेवरेंड तिमोथी शॉ जो हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, और रेवरेंड जय कुमार जो एसोसिएट प्रेस्बिटर हैं, जो पास्टरेट कमेटी के मेंबर्स हैं, और आप सभी का आपके स्वागत के लिए मैं शुभकामनाएं लाता हूँ आपके मध्य में सिनेड ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरफ से। मैं शुभकामनाएं लाता हूं अपने परिवार की तरफ से, विशेषकर अपनी पत्नी रेवरेंड शर्ली लाल, जिन्होंने कुछ समय पहले तक यहां पर ऑनरी एसोसिएट प्रेस्बिटर के रूप में सेवकाई दी। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 12वां रविवार है और हमारे अध्ययन का विषय है
शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया है। हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सुसमाचार का पाठ जो हमारे लिया गया है वो मत्ती 13वां अध्याय 1 से 9 और 18 से 23 पद में हमें मिलता है, जहाँ पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह अक्सर दृष्टांत में बातें किया करते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? उनका क्या उद्देश्य होता था? प्रभु यीशु अक्सर दृष्टांत के जरिए आम जीवन के उन उदाहरण को लेते थे जिससे गहरे आत्मिक गुणों को वो बता सकें। मत्ती 13:10 से 17 में प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं अपने चेलों को कि वो क्यों दृष्टांत में बातें करते हैं। एक तरफ तो जो दृष्टांत थे वो मौका देते थे ताकि जो साधारण लोग थे वो गहरी आत्मिक बातों को समझ सकें, और दूसरी ओर वे लोग जो अपने आप को ऐसा मानते थे कि वो सारी बातें समझते हैं, उनको नकार दिया जाता था क्योंकि वो सुनकर भी नहीं सुनते थे और समझकर भी नहीं समझ पाते थे। इसीलिए जो ज़्यादातर दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहे, प्रभु यीशु ने ये लोगों पे छोड़ दिया कि वो उसको अपने आप समझें। लेकिन कुछ दृष्टांत ऐसे हैं जिनको प्रभु यीशु ने स्वयं समझाया, और बीज बोने वाले का दृष्टांत एक ऐसा ही दृष्टांत है। मत्ती 13:3 से 9 में प्रभु यीशु इस दृष्टांत को प्रस्तुत करते हैं, और फिर मत्ती 13:18 से 23 में इस दृष्टांत के विषय में वो अपने चेलों को समझाते हैं। बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसमें बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, और जब वो बीज बोने निकलता है तो कुछ तो सड़क के किनारे गिरते हैं, कई पथरीली भूमि पे गिरते हैं, कई ऐसी जगह गिरते हैं जहाँ ऊंट कटारे हैं, और वहाँ कोई ऐसी भूमि पे गिरते हैं जो उपजाऊ है। और वो जो उपजाऊ है वहाँ पर जो बीज गिरते हैं वो 30, 60 और 100 गुना फल लाते हैं। इस दृष्टांत के जरिए प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे थे कि जिस प्रकार एक भूमि बीज को ग्रहण करती है, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के वचन कैसा ग्रहण करते हैं ये निर्भर करता है कि वो कितना फलदायक होता है, और जिससे हमारी आत्मिक जीवन की गहराई, उसकी परिपक्वता सामने आती है। ये जो दृष्टांत है ये देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इस दृष्टांत से सीख सकते हैं। पहली बात जो हम यहाँ देख सकते हैं वो ये है कि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो पहल करता है, जो अपने जीवित वचन से हमारे पास आता है, और वो सबके पास आता है, और हमें वो आगे बढ़ने का मौका देता है। अक्सर ये माना जाता है कि धर्म जो है वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर इंसान परमेश्वर की खोज में निकलता है, लेकिन बाइबल हमारे सामने एक अलग दृश्य प्रस्तुत करती है। इस दृष्टांत में, जो कि बीज बोने वाले का दृष्टांत है, बीज बोने वाला आगे पहल करता है, वो आगे होके बीज बोने निकलता है। हमारा परमेश्वर भी आगे होके हमारे पास आता है। ये बीज बोने वाला जब बीज बोने निकलता है तो उसके पास एक ही तरह के बीज हैं। जो भूमि सामने आएगी वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बीज है वो एक ही प्रकार का है, उसमें कोई अंतर नहीं। और इसीलिए हो सकता है जैसा जैसा हम इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं उसका तरीका अलग अलग हो, लेकिन सुसमाचार का जो प्रभाव है, सुसमाचार की जो सामर्थ्य है वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। जो बीज बोने वाला है
वो आगे बढ़कर बीज बोने निकलता है, और चाहे भूमि किसी भी तरह की क्यों ना हो, वो सभी भूमि पर समान रूप से बीज फैला देता है। कुछ बीज जो हैं वो रास्ते पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों पर और कुछ अच्छी भूमि पर। लेकिन चाहे भूमि का रूप कैसा ही क्यों ना हो, जो बीज बोने वाला है वो बीज डालता चला जाता है। जब परमेश्वर अपना उद्धार हमें प्रस्तुत करता है तो वो कोई भेदभाव नहीं रखता, वो सभी पर अपना उद्धार का प्रकाश चमकाता है, और ये दर्शाता है कि जो सुसमाचार है वो सभी के लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। बीज बोने वाला ना सिर्फ पहल करता है, ना सिर्फ भूमि को देखे बिना एक तरीके के बीज डालता है, बल्कि वो ये भी बात का ध्यान रखता है कि बीज को जो उगने का मौका मिले। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम सभी को बराबरी का मौका होता है कि वो वचन हमारे हृदय में फलदायक हो सके, जीवन में फलदायक हो सके। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 में हमें ये स्मरण कराया गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जी हाँ, परमेश्वर जो है वो जगत में सभी से प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो किसी व्यक्ति विशेष जाति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु पर विश्वास करने के लिए सभी को बराबरी का अवसर दिया जाता है, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सभी को बराबरी का मौका है ताकि वो प्रभु में फलदायक हो सकें। तो पहली महत्वपूर्ण बात जो हमें इस दृष्टांत से मिलती है वो ये है कि हमारा परमेश्वर पहल करता है, वो अपने जीवित वचन के द्वारा हम पर आता है और हम सभी के पास वो पहुंचना चाहता है, और हम सभी को बराबरी का अवसर मिलता है ताकि हम इस वचन को ग्रहण कर सकें और फलदायक हो सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं वो ये है कि हमारी प्रतिक्रिया सुसमाचार के प्रति क्या है, वो इस बात को दर्शाती है कि हमारे आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है। मुझे स्मरण है कि जब मैं अपनी सेवकाई के आरंभ सालों में 5 साल तक क्राइस्ट चर्च जगाधरी में पोस्टेड था, वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी रेवरेंड शर्ली ने फैसला किया कि हम अपना एक छोटा सा बगीचा बनाएंगे। हमने बगीचा तैयार किया और हम जाकर एक बीज का पैकेट, जो टमाटर का था, बीज का पैकेट हम मार्केट से लेके आए। हमने बीज बोया और हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो बीज बढ़कर एक छोटा पौधा और फिर पूरा पौधा बन गया। और जब हमारी पहली उपज हुई, पहली बार उन पौधों में टमाटर लगे, हम बड़े ही खुश हुए। लेकिन एक बात का हमें दुख था, क्योंकि जब हमने इस टमाटर को देखा, उसका जो आकार था और उसका जो रंग था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उस बीज के पैकेट पर था जो हमने खरीदी थी। और हमें इस बात का अंदाज़ा आया कि भले ही बीज का पैकेट पे जो तस्वीर बनी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बड़े लाल लाल अच्छे टमाटर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो उसके अंदर बीज था वो वैसे नहीं थे। लेकिन आज का जो दृष्टांत है वहाँ पर बीज में कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो केवल भूमि पर है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रभु यीशु इस दृष्टांत के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से सुसमाचार ग्रहण करते हैं। वो इसी बात से दिखता है कि कैसे एक भूमि एक बीज को ग्रहण करती है। हम में से बहुत से उस भूमि के समान हैं जो एक रास्ते पर है और बहुत बार उस पर चलने आने जाने से वो बहुत सख्त हो चुकी है, जो सुसमाचार ग्रहण नहीं करती, और इसलिए सुसमाचार का बीज सामने खुला रहता है और शैतान उसको आके ले जाता है। हम उन लोगों के समान हो जाते हैं जो क्योंकि हम सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, सुसमाचार का हम पर
कोई प्रभाव नहीं होता है। हम में से कुछ लोग होते हैं जो उस भूमि के समान होते हैं जो पथरीली है। हम बहुत ही खुश होकर सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन हम सुसमाचार को जड़ पकड़ने नहीं देते। और जैसी कुछ चिंताएं सामने आती हैं, परेशानियां सामने आती हैं, हम सुसमाचार का साथ छोड़ देते हैं। फिर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस भूमि के समान हैं जहां पर खूब कांटे हैं। हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, सुसमाचार को जड़ पकड़ने देते हैं, लेकिन धीमे धीमे हम जो संसार है उसकी बातों में इतना लीन हो जाते हैं कि हम अपनी आत्मिक यात्रा से भटक जाते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस अच्छी भूमि के समान हैं, जो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, उसको ना सिर्फ जड़ पकड़ने देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुसमाचार फलदायक हो। और सचमुच सुसमाचार 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। सुसमाचार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है? ये इस बात को दिखाती है कि हमारी आत्मिक स्थिति कैसी है। आज का जो पुराने नियम का पाठ पढ़ा गया, उसमें हम निनवे शहर के लोगों का वर्णन पाते हैं। निनवे शहर एक ऐसी जगह जो बाइबल के अनुसार एक बड़ा नगर था और बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन निनवे के जो लोग थे वो प्रभु से दूर थे। और प्रभु का वचन जोना के जरिए इन लोगों तक पहुंचता है, और जब वो पहुंचता है तो निनवे के लोग उस वचन को ग्रहण करते हैं और वो अपनी गलत दशा से पश्चाताप करते हैं। वो उस भूमि के समान होते हैं जो अभी तक एकदम सख्त थी, जो सड़क के समान थी, लेकिन अब जब वचन को ग्रहण करते हैं तो वो ऐसी भूमि बन जाते हैं जो बड़ी उपजाऊ है। और इस कारण से प्रभु के वचन को जिस तरीके से वो ग्रहण करते हैं, उनका जीवन में एक परिवर्तन आता है। और प्रभु जो है वो पछतावा करता है, और प्रभु ये फैसला करता है कि वो निनवे के लोगों को नाश नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, कई बार जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम में से कुछ लोग हैं जो उस भूमि के समान है जो एकदम तैयार है, और हम में से कुछ लोग हैं जो एकदम सख्त भूमि के समान दिखाई देते हैं। लेकिन हम कैसे दिखते हैं ये इस बात पर नहीं, बल्कि हम वास्तव में सुसमाचार को कैसे ग्रहण करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुसमाचार हम में कितना फलदायक होता है। उदाहरण के लिए हम उस धनी नौजवान को याद करें जो प्रभु यीशु के पास आया, जो अनंत जीवन की खोज में प्रभु यीशु के पास आया, मत्ती 19:16 से 22 में। और उसका जो जीवन है, उसका जो समर्पण है कि वो प्रभु की आज्ञाओं को दिल से मानता आया है, ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति वो है जो उस भूमि के समान है जो उपजाऊ है। लेकिन जब उसके सामने ये चुनौती दी जाती है कि वो जो कुछ उसके पास है उसको बेच दे और कंगालों को बांट दे, तो वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। और तब ये प्रकट होता है कि वो लग तो रहा था ऐसी भूमि के समान जो उपजाऊ है, लेकिन वास्तव में वो ऐसी भूमि थी जहाँ पर कांटे थे। दूसरी ओर हम संत पौलुस को देखते हैं। पौलुस जब शाऊल था उस समय वो ऐसा दिखता था जैसे वो एक ऐसी भूमि है जो बहुत सख्त है, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर जो प्रभु के संग उसका अनुभव होता है वो एक ऐसी भूमि बन जाता है जो उपजाऊ है। और उस उपजाऊ भूमि का जो फल है हमें सुसमाचारों में मिलता है, हमें नए नियम में मिलता है। विशेषकर जो थिस्सलुनीका में कलीसिया है उसमें दिखाई देता है, जैसा कि आज की पत्रिका पाठ में हम देख सकते हैं। अंत में प्यारे मित्रों, मैं फिर वो 2 महत्वपूर्ण बातें दोहराना चाहूँगा जो हमें इस दृष्टांत से मिलती है, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है। पहली बात, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो पहल करता है।
वो जीवित वचन के द्वारा हम सभी के पास बराबरी से आता है और हम सबको बराबरी का अवसर मिलता है ताकि हम उसमें बढ़ सकें, फलदायक हो सकें। और दूसरी बात ये कि सुसमाचार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हम सुसमाचार को किस रूप से ग्रहण करते हैं, ये दर्शाता है कि हमारे आत्मिक दशा क्या है। प्रभु करे जब प्रभु ने पहल की है वो हमारे समीप आया है, जीवित वचन के साथ आया है, हम सभी के पास आया है। और जब वो चाहता है कि मैं और आप फलदायक हों तो हम सचमुच प्रभु के निकट आ सकें और उसके वचन को ग्रहण कर सकें और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का वचन सचमुच फलदायक हो। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।
दुनिया सारी